تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے آئندہ، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے کیا ہے اسلام کے بارے میں؟ وٹ ڈو یو ریئلی نو اباؤٹ اسلام؟ کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس جاننے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ آپ کو نیوز چینل سے ملا، جانے آپ کسی نیوز چینل سے اسلام کے بارے میں آپ جانیں، یا کسی نیوز پیپر سے آپ اسلام کے بارے میں جانیں، یا کسی آرگنائزیشن سے جو اینٹی مسلم کام کرتا ہے ان کے ذریعے، یا اپنے دوستوں کے ذریعے، یا کسی انسان کے ذریعے آپ نے سنا ہو اسلام کے بارے میں اس جاننے کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صحیح میں فیکٹ جو بولا جاتا ہے کہ آپ صحیح میں خود سے پڑھ کے یا خود سے جان کر کے یا خود سے آپ کو کیا فیکٹ پتا ہے اسلام کے بارے میں۔ نیوز چینل میں فیکٹس کے بعد فکشن، اکثر تو فکشن ہی چلتا ہے نیوز چینل پہ آج کل۔ نیوز پیپر میں بھی فکشن ہو سکتا ہے، آپ کے لوگ، آپ کے دوست جو بول رہے ہیں وہ بھی فکشن ہو سکتا ہے، وہ فیکٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ فیکٹ کیا جانتے ہیں آپ اسلام کے بارے میں؟ اسلام ایک عربی کا شبد ہے، عربی کا ورڈ ہے جو کہ آتا ہے عربی کا مول شبد سلم سے، جس کا مطلب ہوتا ہے شانتی، سلامتی، یا تو عربی کا مول شبد سلم سے بھی آتا ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی اچھا کو ایشور کی اچھا کے انوسار کرنا، اپنی رضا کو اللہ کے رضا کے مطابق کرنا، سرنڈرنگ ٹو دا ول آف گاڈ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، ایشور کے سامنے، گاڈ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ ابھی مان کے چلیے کہ پولیس آتا ہے آپ کے گھر میں اور آپ کو بولتا ہے کہ ہینڈس اپ، اور آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے سرنڈر۔ اب سرنڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں تو آپ پولیس والے کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں۔ اب جو بھی پولیس والے کہیں گے آپ کو وہی کرنا ہے۔ اگر پولیس والے کہیں گے آپ کو کھڑا ہونا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا، اگر وہ کہیں گے کہ آپ کو بیٹھنا ہے آپ کو بیٹھنا ہے، اگر وہ کہیں گے کہ آپ کو چلنا ہے تو آپ کو چلنا ہے، اگر وہ کہیں گے آپ کو دوڑنا تو آپ کو دوڑنا بھی پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر۔ اور یہ سرنڈر جب آپ اللہ کے سامنے، جب آپ گاڈ کے سامنے، جب آپ ایشور کے سامنے اس سرنڈر کو کرتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے اسلام، اور اسلام کے ماننے والوں کو بولا جاتا ہے مسلمان۔ جیسے کہ جیزس کرائسٹ کہتے ہیں بائبل میں، اگر آپ بائبل پڑھیے گا، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، وہ کہتے ہیں کہ آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف دائی ہو سینٹ می، کہ میں اپنی اچھا نہیں اس کی اچھا چاہتا ہوں جس نے مجھ کو بھیجا، مطلب ایشور کی اچھا چاہتا ہوں۔ اسی کو ایک ورڈ میں بولا جاتا ہے اسلام۔ یا اگر آپ بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 66، تو اس میں بولا گیا ہے کہ سرنڈر کرنا، آپ کو سمرپت کرنا اپنے آپ کو ایشور کے سامنے، اسی کو بولا جاتا ہے اسلام۔ اور اسلام کے ماننے والے کو بولا جاتا ہے مسلمان۔ مسلم بولتے ہیں اسلام کے ماننے والوں کو۔ اور دنیا میں 1/5، مطلب کہ ہر 5 انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے اس میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اور اسلام آج کے ٹائم پہ سب سے اسپیڈ میں بڑھنے والا، فاسٹسٹ گروئنگ فیتھ بھی ہے، سب سے تیزی سے بڑھنے والا دھرم بھی ہے آج کے ٹائم پہ اسلام۔ بہت بار یہ لوگ سوچتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ اسلام ایک نیا دھرم ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت بار ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں یا ویڈیوز آپ دیکھیے گا یوٹیوب کے اوپر یا ویکیپیڈیا کے اوپر، تو لکھا رہتا ہے کہ اسلام از اے نیو ریلیجن، اسلام ایک نیا دھرم ہے جس کی شروعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ عربیہ میں کیا تھا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، دھرم، زندگی جینے کا طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام رہا ہے شروع سے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع میں کچھ اور بول رہے تھے کہ آپ کو پہلے انسان کے سامنے انسان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، بعد میں میری مرضی کے مطابق چلنا ہے، نہیں، شروع سے دھرم یہی رہا ہے، زندگی جینے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ آپ اپنی اچھا کو ایشور کی اچھا کے انوسار۔ اسی لیے قرآن میں بہت سارے ایسے شخص ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رہتے تھے اس دنیا میں، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں رہتے تھے، انہیں مسلم کہا گیا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، جیزس کرائسٹ کو مسلم کہا گیا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں رہتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام از ناٹ اے نیو ریلیجن، اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، اسلام از ایز اولڈ ایز مین کائنڈ، اسلام تب سے ہے جب سے انسانیت ہے، اسلام تب سے ہے جب سے انسان نے اپنے قدم اس دنیا میں رکھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فاؤنڈر نہیں اسلام کے، بلکہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ اسلام کے بہت سارے پیغمبر آئے اس دنیا میں، آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ اسلام کمپلیٹ کیا گیا، مکمل کیا گیا۔ اور اگر آپ نام کو بھی لے لیں، اسلام یہ ورڈ، جیسے بہت سارے دھرم کا، ریلیجن کا نام ہوتا ہے، جیسے کرسچینٹی، وہ آتا ہے کسی انسان کے نام پہ، جیزس کرائسٹ کے نام پہ رکھایا گیا کرسچینٹی۔
या बुद्धा के नाम पे रखाया गया, बुद्धा के नाम पे रखाया गया, गौतम बुद्ध के नाम पे बुद्धिज्म। या उसी तरह बहुत सारे धर्म जो होते हैं वो किसी ट्राइब के नाम पे रहता है, जैसे कि जुडाइज्म, जूडा एक शख्स थे, जूडा उनका ट्राइब है, उसी से जुडाइज्म, यहूदा यहूदियत रखा गया। उसी तरह कुछ धर्म जैसे कि हिंदुइज्म, वो एक ज्योग्राफिक लोकेशन से आता है, सिंधु के बगल में जो रहते हैं उसको बोला जाता है हिंदू, उस तरह से ज्योग्राफिकली हिंदुइज्म वहां से नाम आया। इस्लाम इस तरह से देखा जाए तो किसी भी इंसान से, किसी भी ट्राइब से या किसी भी ज्योग्राफिक लोकेशन से अपने नाम को नहीं लेता, बल्कि इस्लाम का जो नाम है वो आता है कहाँ से, वो ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से आता है। मतलब कि अल्लाह ताला के सामने जो झुकता है उसको बोला जाता है, उसको बोलता है मुसलमान, और अल्लाह के सामने झुकने को ही कहीं नाम को बोला जाता है इस्लाम। और बहुत सारे लोग मोहम्मडन टर्म का यूज करते हैं, मोहम्मडन, जो कि एकदम बिल्कुल ही सही नहीं है। मोहम्मडन, जैसे कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग क्रिश्चियन है, उसी तरह क्योंकि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते होंगे तो इनका नाम मोहम्मडन है। लेकिन मोहम्मडन, हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं करते, बल्कि हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की पूजा करते हैं। इसलिए हमारा नाम क्या है, मुसलमान, और हमारा दीन क्या है, वो इस्लाम। अब ये क्वेश्चन जो है, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है, इसका जवाब यही सवाल किया जाता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर आप पढ़िएगा सही बुखारी किताबुल ईमान वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 50, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो देवदूत है, जो फरिश्ते, वो आते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बोलते हैं इस्लाम क्या है, उनसे पूछते हैं। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके उसके साथ शरीक मत करो, उसके बराबर किसी को मत बनाओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो जो तुम पर फर्ज है, और रोजे रखो रमजान। इसी तरह एक और हदीस है सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताबुल ईमान हदीस नंबर 8, उसमें अल्लाह के नबी बोलते हैं बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर है। नंबर 1, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा किसी और की ऐलान, कोई और इलाह नहीं, व अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। इकामतिस सलाह, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रोजे रखना, ये 5 पिलर है इस्लाम की, ये बुनियाद है इस्लाम की। इस्लाम क्या है अगर पूछा जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब दे रहे हैं कि ये इस्लाम है, पिलर्स ऑफ इस्लाम। जिस तरह घर में जब घर बनाया जाता है तो पिलर्स रखते हैं, हम बुनियाद रखी जाती है, ये इस्लाम की बुनियाद है। नंबर 1 कि आपको गवाही देना है, आपको विटनेस बनना है, इस बात को की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई भी इलाह नहीं, एक ही इलाह है, उसके अलावा कोई भी इलाह नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल है। नंबर 2, आपको नमाज पढ़ना है, और नमाज में पूरे एक लेक्चर हो सकता है, जाहिर सी बात है, नमाज के ऊपर, जिसको सलाह बोला जाता है अरबी में। नमाज में एक पॉइंट जो मैं अभी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि नमाज में हम लोग सबसे अपना टॉप मोस्ट पॉइंट को सबसे नीचे रखते हैं जमीन पे, और कहते हैं सुभान रब्बियल आला। आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप प्रॉफिट हो सकते हैं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत ही बड़े एक्टर, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको नमाज जब आप आते हैं तो आपको अपने हाईएस्ट पॉइंट को, अपने सर को जमीन पे रखना है, जिसको सजदा बोला जाता है, और फिर कहना है सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा आला रब, मैं पाक नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन परफेक्ट कौन है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नमाज। तीसरा ज़कात देना, जो कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया, ज़कात 2.5%। मैंने बोला कि इंडिया के सबसे जो अमीर इंसान है उनके 18 बिलियन नेट वर्थ है, अगर 2.5% सिर्फ वो अपने वेल्थ से, अपने पैसे से निकाल देते हैं तो 45 करोड़, 450 मिलियन होता है। ये सिर्फ एक इंसान। आप सोच सकते हैं अगर हम सारे अमीर इंसानों को ज़कात दिलवा दें दुनिया के, तो आप सोच सकते हैं गरीबी मिट जाएगी दुनिया से। ज़कात देना 2.5%, आपके जो मनी है, आपका जो पैसा है, अगर 1 साल गुजर जाता है लूनर कैलेंडर के हिसाब से, और आपका निसाब लेवल, निसाब बोला जाता है अगर आपके पास 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या 595 ग्राम्स ऑफ सिल्वर से ज्यादा आपके पास पैसा है, और 1 साल गुजर जाता है आपका सेविंग्स में, तो उसमें से 2.5% आपको देना है, आपको ज़कात देना। नंबर 3 पॉइंट इस्लाम के पिलर। नंबर 4, हज करना, जो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बेस्ट फॉर्म है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आप जब हज पे जाते हैं, हर एक इंसान, चाहे सऊदी अरब का अगर वो राजा हो, या जॉर्डन का राजा हो, या इजिप्ट का प्रेसिडेंट हो, या कहीं या एक आम इंसान हो, हर एक इंसान को 2 बिना सिले हुए कपड़े को पहनना है, 2 चादरों को लपेटना है। अगर वो इंडिया के बहुत ही बड़ा करोड़पति हो, या इंडिया के बहुत ही एक सिंपल इंसान हो, मिडिल क्लास का इंसान हो, हर दोनों इंसान को, ऐसा नहीं कि जो करोड़पति है वो बहुत ही महंगा कपड़ा पहन सकता है, उसको भी 2 चादर में रहना है, और इसको भी 2 चादर में रहना है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा का बेहतरीन एग्जाम्पल है हज, जिसको हर साल में एक बार मुसलमान करते हैं। नंबर 4 पॉइंट।
और नंबर 5 पॉइंट रोजे रखना इस रमजान के, जो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम तकवा वाले बन सको। रोजे क्यों रखा गया है, रोजा क्यों रखवाते हैं, ताकि तुम तकवा वाले बन सको, ताकि तुम अल्लाह के परहेजगार बंदे बन सको। तो ये इस्लाम के पिलर्स है। और इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, जैसे कि बोला जाता है इस्लाम एक रिलीजन नहीं है, बल्कि ये एक दीन है। दीन बोला जाता है एक वे ऑफ लाइफ को, जिंदगी जीने का तरीका आपको बताता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बताता है एक अल्लाह को मानना है, नमाज पढ़ना और इतने ही में एंड हो जाता है, बल्कि इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी जीने का तरीका है। आपको बिजनेस कैसे करना है, आपका क्रिमिनल लॉज क्या होना चाहिए, आपका सिविल लॉज क्या होना चाहिए, आपके इकोनॉमिक लॉज क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। इस्लाम एक दीन है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। और इस्लाम हमेशा इस बात पे ध्यान देता है कि क्रिएशन को क्रिएटर से अलग रखा जाए, कि खालिक को मखलूक से हमेशा अलग रखा जाए। इस्लाम में क्रिएटर जो अल्लाह सुब्हानो ताला है, आपके खालिक है, वो अलग होते हैं और मखलूक अलग होते हैं। कभी भी खालिक मखलूक में नहीं आते, ना ही मखलूक खालिक बनता है। कभी भी क्रिएटर क्रिएशंस में नहीं आते और ना ही क्रिएशन क्रिएटर बनता है। क्रिएटर अलग होते हैं, जिसकी इबादत होनी चाहिए, जिसके सामने हमको झुकना चाहिए, जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसकी उपासना होनी चाहिए। और क्रिएशन जो होते हैं वो हमेशा वो डिपेंडेंट होते हैं क्रिएटर के ऊपर, खालिक के ऊपर। और इस्लाम एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है, एक प्रैक्टिकल, जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को थ्योरी पढ़ाया जाता था और फिर प्रैक्टिकल लैब में ले जाया जाता था। तो हर कोई बोलता है कि हर कोई भाई भाई है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। दिन में 5 बार इस्लाम उनको लाता है इन लोगों को, अगर वो करोड़पति हो या वो रिक्शा चलाने वाला हो, अगर वो नमाज में आते हैं तो कंधे से कंधा और पैर से पैर मिला के खड़े होंगे आपको। भले ही बगल में आपके करोड़पति हो या रिक्शा चलाने वाला हो, आपको कंधे से कंधा और पैर से पैर मिला के खड़ा होना है। और बड़े लेवल पे मैंने बोला हज में, जब आप हज पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग वहां पर रहते हैं हज पे, और वहां पर आपको सब कोई अनसीन, बिना सिले हुए 2 चादरों में रहता है। आपको पता चलता है ये आलमी भाईचारा। तो किस तरह भाई भाई बनाना, गरीबी मिटाना, हर कोई बोलता है कि हम लोगों को गरीबी मिटाना है, अपने मैनिफेस्टो में लाता है, लेकिन किस तरह हटाना है। ज़कात का सिस्टम इस्लाम पूरा का पूरा सिस्टम देता है कि ज़कात का ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिससे कि आप गरीबी को मिटा सकते हैं। तो इस्लाम एक प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है। और मैं आखिर में यही बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक शख्स आए थे कुछ दिन पहले। वो कह रहे थे कि मैंने डिसाइड किया है कि एक वे ऑफ लाइफ में मैं जा रहा हूँ, एक ज़िंदगी जीने का तरीका मैं नया अपनाना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपके जो ये ज़िंदगी जीने का तरीका, उसके कितने क्लॉज़ है, कितने रूल्स आपको फ़ॉलो करना होगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगभग 40 से 47 रूल्स है जिसको मुझको फ़ॉलो करना होगा, जिससे कि मैं उसमें चले जाऊँगा। तो मैंने उनको कहा कि इस्लाम में सिर्फ 2 क्लॉज़, आपको सिर्फ 2 बात को मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कि आपको सिर्फ ये मानना कि अल्लाह जो कि आपका खालिक है, जिन्होंने आपको बनाया है, वो जिसके जैसा कोई भी नहीं है, जिसके कोई भी माँ-बाप नहीं है, जो कि जनता नहीं है, जनावर नहीं है, जिसके जैसे कोई भी नहीं है, वो सिर्फ एक इलाह है जिसकी इबादत हम लोग को करनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। तो सिर्फ 2 पॉइंट, ये 2 क्लॉज़ आपको मानना है और आप मुस्लिम बन सकते हैं। आप ईज़िली, आपको 47 क्लॉज़ की ज़रूरत नहीं इस्लाम मुस्लिम बनने के लिए, बल्कि आपको सिर्फ 2 क्लॉज़, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसी बात के साथ मैं इस बात पे अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि यू मस्ट रियली नो अबाउट इस्लाम, कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, आप लोग को जरूर इस्लाम के बारे में जानना चाहिए। टीवी चैनल से नहीं, मीडिया से नहीं, न्यूज़पेपर से नहीं, अपने दोस्तों से नहीं, किसी शाखा से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, किसी और इंसान से नहीं, बल्कि अगर आपको खुद जानना चाहिए कि ये कुरान, ये जो उसका धर्म ग्रंथ है, जो होली स्क्रिप्चर है, वो क्या बोलता है। आपको खुद पढ़ना चाहिए, खुद जानना चाहिए, और ये आपका हक है, आपका राइट है, ये बर्थ राइट है, आपको जानना चाहिए कि इस्लाम क्या है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये अपनाने का भी आपको पूरा हक है, पूरा आपका ये बर्थ राइट है, ये आपका हक है कि आप इसको अपना सकते हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कुरान की एक आयत से, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 163। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सारा का सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं सब मानने वालों में से पहला मानने वाला, और मैं सब मानने वालों में से पहला मुसलमान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।